screen. Okay. In the last lecture, we have started the life cycle. Okay. There are two types of life cycle. Means the first is application life cycle, and the second is page life cycle. Okay. This ASP.NET page life cycle. I told you what is application, what is a page. Okay. What is the difference between application and page? I told you in the last lecture. Okay. Which are the steps? Which are the steps occurs during the applications? Okay, when we are running the applications, the which steps are occurred that are shown in this figure. When we will start the application or we will request for any applications, so these steps will be performed. Okay, the first the step is application start. Okay, application start. After that, when we start the application, the object will be created. Which objects will be created? Application HTTP response and HTTP request. Okay, then HTTP application creation, the object जो create हुआ था, the object will be sent to the user, server के पास जाएगा, server will send the response. ठीक है, server क्या करेगा? Response send करेगा. Then dispose. Okay, जब when we will close the application, ठीक है, उसको हम लोग close कर देंगे, तो application will be disposed and application end. ठीक है, when the memory में से application remove हो जाएगा. ठीक है, when the application remove from the memory, then application will be end. So these are the steps of ASP.NET application life cycle. Okay, you have to remember all these steps. आपको याद रखना है. I will ask in the MCQ में कि which is the first stage क्या है, what is the second stage क्या है life cycle, what is the third stage, what is the fourth and what is the last stage. 4 option दिया होगा. ठीक है, तो कोई भी तरीके से I will ask the question. The first is application start. The first stage is application start. ये already मैंने cover किया in the last lecture में. Again I am repeating this. Okay, the first step is application start. The life cycle of ASP.NET application start when the request is made by the user. When you will request for any website or when any web application in the browser. Okay, आप रिक्वेस्ट करते हो ब्राउजर ओपन करके www.university.co.in या तो कोई भी साइट you are requested, at that time the application will be started. This request is to the web server for the ASP.NET application. ये request किसके पास आएगा? Web server के पास. This happens when the first user normally goes to the home page for the application for the first time. ठीक है, कोई भी आप एप्लीकेशन जब रिक्वेस्ट करते हो तो होम पेज इज ओपन. ठीक है, होम पेज ओपन होता है ना डायरेक्टली, तो आप कोई पर्टिकुलर मेनू में नहीं जाते. फॉर एग्जांपल मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट आपने टाइप किया इन ब्राउजर में यूआरएल उसका www.mumbaiuniversity.co.in, तो आप कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे? होम पेज पे डायरेक्टली. आप कोई स्टूडेंट सेक्शन, उसमें स्टूडेंट टैब है तो स्टूडेंट टैब में है, तो कोई और टैब में यू कैन नॉट डायरेक्टली redirect नहीं होते. You will redirect to the home page. Okay, during this time there is a method called application start which is executed by the web server. ठीक है, तो क्या होता है at that time जो एप्लीकेशन स्टार्ट मेथड है वो एग्जीक्यूट होता है बाय द वेब सर्वर. उसको वेब सर्वर एग्जीक्यूट करेगा, हमको नहीं करना है. व्हेन वी विल मेक अवर वेबसाइट, वी विल होस्ट दैट वेबसाइट इन द डोमेन में. जब उसको हम लोग होस्ट कर देंगे तो कोई भी यूजर जो है हमारा जो वेबसाइट रिक्वेस्ट करेगा तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? सर्वर के पास जाएगा. कौन से सर्वर के पास? जिस डोमेन में हमने उसको पब्लिश किया है, इन दैट डोमेन में वो सर्वर जो है सर्वर रिक्वेस्ट सॉरी रिस्पॉन्स देगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज रिक्वेस्ट, व्हाट इज रिस्पॉन्स, आपको आई होप पता है सबको. ठीक है, यूजुअली इन दिस मेथड ऑल ग्लोबल वेरिएबल्स आर सेट टू दैट डिफॉल्ट वैल्यू. जितने भी वो एप्लीकेशन में ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, ऑल वेरिएबल्स आर सेट टू डिफॉल्ट वैल्यू. जो भी उसको वैल्यू असाइन किया वो रेडी हो जाएगा वैल्यूज. द सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन. द सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ओके, क्या बता रही हूँ मैं आपको? लाइफ साइकिल. किसका लाइफ साइकिल? ASP.NET एप्लीकेशन, नॉट पेज लाइफ साइकिल. होल एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल है. ठीक है, एप्लीकेशन का लाइफ साइकिल है. फर्स्ट स्टेज एप्लीकेशन स्टार्ट. व्हाट इज द सेकंड स्टेप? क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन. द नेक्स्ट स्टेज इज द क्रिएशन ऑफ द HTTP कॉन्टेक्स्ट, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स बाय द वेब सर्वर. ओके, HTTP कॉन्टेक्स्ट जो है वो HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को क्या करेगा? कंटेनर, वन टाइप ऑफ फोल्डर है जो रिक्वेस्ट, जो भी हम लोग रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा और जो भी रिस्पॉन्स सर्वर सेंड करेगा उसको वो कैरी करेगा. कौन? HTTP कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट. ओके, यस, द HTTP कॉन्टेक्स्ट इज जस्ट कंटेनर फॉर द HTTP रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. ओके, यस, the HTTP request object contain the information about the current request. Okay, HTTP request object contains the information about the current request including cookies and browser information. Okay, and
the HTTP response object contains the response that is sent to the client. Okay, whenever we make the request, कोई भी हम लोग request send कर डालते हैं in the web URL में, web browser में as a URL, जब हम request type करते हैं at that time server के पास वो request जाता है, तो कौन से फॉर्म में जाता है, कैसे जाता है, HTTP request object create होता है. कौन सा object create होता है, HTTP request object. हम लोग नहीं करते वो, we will make our only application, हमारा वेबसाइट ही बनाएंगे जब उसको हम लोग होस्ट करेंगे, when we will host that application, okay, डोमेन में सर्वर पे उसको होस्ट करेंगे, तब जब हम रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, एट दैट टाइम द रिक्वेस्ट विल बी जनरेटेड. ओके, रिक्वेस्ट जनरेट होगा, किसके पास जाएगा, सर्वर के पास, सर्वर विल जनरेट द रिस्पॉन्स. ओके, सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एंड सेंड टू द क्लाइंट को, वो क्या करेगा, सेंड करेगा. तो द सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ओके, द सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन. फर्स्ट क्या होता है, when you will type in the browser में टाइप करोगे, होम पेज पे रिडायरेक्ट होगा, तो एप्लीकेशन एट दैट टाइम स्टार्ट हो गया. सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल होम पेज पे आप गए, कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आपने दिया कि ये पेज ओपन करना है, वो पेज ओपन करना है, या तो टैब मेनू में कोई भी टैब्स में यू आर गोइंग टू, स्टूडेंट सेक्शन में जा रहे हो, इवेंट सेक्शन में जा रहे हो, न्यूज सेक्शन में जा रहे हो, तो हर एक के लिए क्या होगा, रिक्वेस्ट विल बी जनरेटेड. ओके, हर एक चीज व्हेन यू विल क्लिक ऑन एनी टैब पे, जब क्लिक करते हो तो क्या होता है, हर एक के लिए रिक्वेस्ट जनरेट होता है. ओके, सिंपली जब आप बटन पे भी क्लिक करते हो ना, तो वो बटन पे क्लिक करते हो तो वो रिक्वेस्ट किसके पास आता है, सर्वर के पास, एंड सर्वर क्या करता है, आउटपुट सेंड करता है. बट दैट प्रोसेस जो है, इट अकर्स विद इन इतना फ्यू सेकंड्स में होता है ना, आपको ऐसा लगता है चलो हमने क्लिक किया आ गया, बट नहीं, व्हेन यू विल क्लिक दैट बटन या तो कोई टैब पे क्लिक करते हो, तो रिक्वेस्ट जनरेट होकर सर्वर के पास जाता है एंड सर्वर विल सेंड द आउटपुट टू द क्लाइंट. ओके, इन द लास्ट मंडे जो है हमने प्रैक्टिकल किया था, एडिशन ऑफ टू नंबर्स. ओके, एंटर द नंबर 1 एंटर नंबर 2 एंड बटन पे क्लिक किया था. जब हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं ना, तो क्या होता है, रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाता है, सर्वर उसको एडिशन करके हमको देता है. ठीक है, बट वो लोकल होस्ट है, बिकॉज अभी तक उसमें हमने पब्लिश नहीं किया. व्हेन वी विल पब्लिश दैट वेबसाइट, ठीक है, हम लोग पब्लिश करेंगे तो ये प्रोसेस जनरेट होगा. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज HTTP एप्लीकेशन क्रिएशन. नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज HTTP एप्लीकेशन क्रिएशन. सेकेंड क्या था, ऑब्जेक्ट क्रिएशन. The third is HTTP application creation. This object is created by the web server. हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो वेब सर्वर ही क्रिएट करेगा. It is this object that is used to process each subsequent request sent to the application. Okay, for example, let us assume we have two web applications. One is shopping cart and other is news website. हर एक एप्लीकेशन के लिए क्या होगा, टू HTTP एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट. ओके, HTTP application creation मतलब for example in one tab you are opening the मुंबई यूनिवर्सिटी का साइट ओपन करो, इन द सेकंड tab you are opening the कोई और वेबसाइट ओपन करो. ठीक है, तो एवरी एप्लीकेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए टू जो ऑब्जेक्ट्स है वो क्रिएट होगा. ओके, HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. Then fourth one is a dispose stage. This event is called before the application instance is destroyed. During this time, one can use this method to manually release any unmanaged resource. For example, आपने जो tabs open किया था, ठीक है, for example यूनिवर्सिटी के साइट पे स्टूडेंट सेक्शन ओपन किया, तो बैक जा रहे हो तो उसको क्लोज करो, या तो कोई न्यूज सेक्शन में जा, यू विल गो एंड उसको यूज करके उसको क्लोज करो, उसको बंद करो. ठीक है, जो मैन्युअली यू आर डूइंग, ठीक है, जो भी मेमोरी में है बट आपने उसको क्लोज कर दिया, तो एट दैट टाइम डिस्पोज इवेंट इज कॉल्ड. कौन सा इवेंट होता है, डिस्पोज इवेंट. ओके, मतलब जो भी मेमोरी में तो है बट आपने उसको अपनी स्क्रीन पे से आप उसको यूज करना, क्लोज मतलब बंद कर दी, यू आर क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर टैब, पर्टिकुलर जो उसका पेजेस है वो उसको क्लोज कर दिया यूज करने के बाद, दैट्स द डिस्पोज इवेंट. एंड एप्लीकेशन एंड, व्हेनेवर यू फुल्ली क्लोज योर एप्लीकेशन, जब वो उसको क्लोज कर दिया, मेमोरी में से वो डिस्ट्रॉय हो गया, मेमोरी में से निकल गया, देन उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन एंड. कौन सा स्टेट है, एप्लीकेशन एंड स्टेट. ओके, तो दिस आर द लाइफ साइकिल ऑफ ASP.NET एप्लीकेशन. ओके, दिस इज द life cycle of the application, ASP.NET application. Okay, clear? Yes or no? Yes or no? समझ में आ रहा? हाँ, ओके. ASP.NET application life cycle क्या था, application, when you are making any request for the application, particular application, website is application. Okay, if you are typing the converter है, that is
एप्लीकेशन, ओके। तो जब पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए आप करते हो रिक्वेस्ट, तो वो लाइफ साइकिल जो स्टेज है वो परफॉर्म होता है। द नेक्स्ट इज ASP.NET पेज लाइफ साइकिल, पर्टिकुलर पेज। व्हेन ASP.NET पेज इज कॉल्ड, it goes through a particular life cycle. This is done before response is sent to the user. There are series of steps which are followed for processing on the ASP.NET page. Okay. For example, मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे यूर गोइंग टू द रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन पेज पे जा रहे हो, या तो गूगल, या तो याहू, या तो फेसबुक, कोई पे भी। व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन द साइन अप फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हो, तो जब वो फॉर्म पे व्हेन यू आर क्लिकिंग दैट फॉर्म, ठीक है, तो वो फॉर्म पे क्लिक करने के बाद व्हाट द प्रोसेस अकर, ठीक है, वो प्रोसेस क्या अकर होता है। तो दिस एट द प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट क्या होगा, द पेज रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल यू आर रिक्वेस्टिंग द रजिस्ट्रेशन पेज, साइन अप पेज के लिए रिक्वेस्ट करो। द सेकंड इवेंट क्या होगा, पेज विल बी स्टार्ट। नेक्स्ट पेज विल बी इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब क्या, पेज स्टार्ट हो गया। इनिशियलाइजेशन मतलब जो पेज में जो कंट्रोल्स हमने लिया था, मतलब जिसने वेबसाइट जो पेज बनाया है उसमें जितने भी कंट्रोल्स है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ऑल कंट्रोल्स जो है दैट विल बी इनिशियलाइज्ड। वो क्या होगा, इनिशियलाइज होगा, उसको वैल्यू असाइन होगा। देन पेज लोड, ओके, पेज विल बी लोड, पेज लोड होगा मेमोरी में। then validation, if you are assigning some validation, तो validation will be set. for example pin code, तो pin code कितना होना चाहिए, 6 digit, ओके। पिन कोड कितना होना है, 6 डिजिट होना चाहिए। इफ यू आर एंटरिंग मोर देन 6 और लेस देन 6, तो इट विल बी एरर। तो वैलिडेशंस वी विल लर्न, हम लोग पढ़ेंगे। अगर इफ यू आर असाइनिंग एनी वैलिडेशन टू द वेब पेज को, पर्टिकुलर पेज में वैलिडेशन दिया है तो वो सेट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग विल बी अकर। इफ यू आर assigning the post back, what is post back event, that we will learn in the next units में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जस्ट रिमेंबर कि उसके बाद वैलिडेशन के बाद जो पोस्ट बैक इवेंट अगर हमने कुछ असाइन किया तो दैट विल बी सेट। देन पेज रेंडरिंग, मतलब आपने पेज क्लोज करो, ठीक है, पेज का जो डेटा है, पेज का जो काम है वो हो गया, यू विल क्लोज दैट पेज। एंड अनलोड, एग्जिट हो गया एप्लीकेशन में से, मेमोरी में से बाहर निकल गया, दैट इज अनलोड। तो दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ पर्टिकुलर पेज, ASP.NET वेब पेज, ठीक है, पर्टिकुलर वेब पेज। एप्लीकेशन के लिए जब आप करते हो तो जो ऊपर स्टेप्स देखा था, स्टेप्स विल बी अकर। जब वो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यू आर रिक्वेस्टिंग या यू आर क्लिकिंग ऑन पर्टिकुलर पेज पे, जब क्लिक करते हो होम पे, लॉगिन पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, whatever pages are there. If you are using the online shopping website, if you are using तो शॉपिंग वेबसाइट्स में कार्ड पेज, या तो सर्च पेज, या तो प्रोडक्ट पेज, या तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज, जो भी पेजेस यू आर यूजिंग, तो एट दैट टाइम वो पेज जब आप उसको क्लिक करते हो आपको आउटपुट मिलता है। बिटवीन दैट टू स्टेप्स ये प्रोसेस जो है फुल्ली अकर होता है, ठीक है। व्हाट इज द पेज रिक्वेस्ट, वी विल लर्न इन डिटेल। द फर्स्ट स्टेप इज द पेज रिक्वेस्ट। यस स्टूडेंट्स, गॉट इट? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, if you have any doubt, so you can ask me anytime. Okay, अगर नहीं समझ में आया तो you can ask me anytime. Okay, yes. Page request. This is important, student, because we are going to make the websites, web applications. So you should know कि क्या प्रोसेस होता है, ओके, क्या होता है। अब हम लोग एक पेज हम लोग डिजाइन करेंगे, व्हेन वी आर डिजाइनिंग दैट पेज, उसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है, दैट पेज वी आर रनिंग दैट पेज। तो जब पेज रन करते हो तो क्या प्रोसेस बैकग्राउंड में होता है, दैट वी शुड नो, ठीक है। ये सारी चीजें हमको नहीं करना है, हम तो जस्ट क्या करेंगे, वी विल डिजाइन अवर पेजेस, वी विल डिजाइन, उसको रन करेंगे, उसका आउटपुट आ रहा है, हो गया, ठीक है। बट जब आप उसको वेबसाइट्स, जो आप वेब एप्लीकेशन व्हेन यू विल होस्ट, उसको होस्ट करोगे सर्वर पे, तो उसको पब्लिश करोगे पर्टिकुलर डोमेन्स में, तब आपका वेबसाइट सर्वर पे कैसे रन होगा, वो पूरा प्रोसेस ये है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो जस्ट हमारे डिजाइनिंग करके वेबसाइट्स बना के एप्लीकेशन करके उसको होस्ट करेंगे। बट आफ्टर द होस्टिंग, ओके, आफ्टर द होस्टिंग डोमेन पे या तो सर्वर पे आपने होस्ट किया, तब आपका एप्लीकेशन कैसे रन होगा, ये उसके स्टेप्स है। द फर्स्ट इज पेज रिक्वेस्ट, द फर्स्ट इज पेज रिक्वेस्ट, ओके। कौन सा किसका स्टेप है, पेज रिक्वेस्ट, पेज लाइफ साइकिल, ओके। द फर्स्ट इज पेज रिक्वेस्ट, दिस इज व्हेन द पेज इज फर्स्ट रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सर्वर, ओके। दिस इज, ये जो है फर्स्ट स्टेज अकर होता है व्हेन, दिस इज व्हेन द पेज इज फर्स्ट रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सर्वर। When the page is requested, the server check if it is a requested for the first time. Okay, सर्वर जब आप कोई पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है, किस, फिर सर्वर विल चेक, सर्वर चेक करेगा
कि जो रिक्वेस्ट आया है पेज के लिए, क्या वो फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आया है कि ऑलरेडी इसके बाद पहले भी कोई रिक्वेस्ट आ चुका है सेम पेज के लिए. अगर फर्स्ट टाइम है देन इट नीड्स टू कंपाइल द पेज, पार्स द रिस्पॉन्स एंड सेंड टू अक्रॉस द यूजर. ओके, इफ इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, अगर वो रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम यूजर के पास सर्वर के पास नहीं, उसके पहले भी रिक्वेस्ट आ चुका है, तो क्या होगा, द कैच इज चेक्ड. ओके, द कैच मेमोरी जो है, द कैच मेमोरी है, दैट विल बी चेक टू सी इफ द पेज आउटपुट एग्जिस्ट और नॉट. Okay, if so, that response is sent to the users. What is cache? What is cache memory? कौन बताएगा मुझे, याद है किसी को? What is cache memory? Operating system में पढ़ा ना. What is cache memory? Memory, types of memories. हमारे computers में भी types of memory हैं. Primary memory, secondary memory and cache memory. Okay, so what is primary memory? What is secondary memory? What is cache memory? जल्दी से बताओ, चलो fast. Yes, fast. What is primary memory, secondary memory and cache memory? Yes, students. इसको याद है? हाँ, बताओ चलो. What is primary memory, secondary memory and cache memory? Yes, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी. Please, I want the answer. This is a first semester का question है. First semester में पढ़ा. Now you are in the TY. You should know what is primary memory, what is secondary memory, what is cache memory. बताओ चलो. Yes, शोएब, अरबाज, कृतिका, कीर्ति, अबू बकर. Many students are there in the lecture. Yes, Abhay. What is primary memory? What is secondary memory? And what is cache memory? Yes. What is primary memory? Okay. You know the answer, yes or no? Tell me. You know the answer? If no, then tell me, ma'am, no, we don't know. Then I will explain. चलो बताओ. प्राइमरी मेमोरी. हाँ, जरूर. मैम जिसमें मैम प्रेफरेंस मैम देता है मैम पहला स्टोर करने के लिए. Give the example of primary memory. Give the example of primary memory. Which is a primary memory? कौन सा primary memory है? Yes, other students. नशरा, अभय, कीर्ति. ट्राई करो चलो. ये पता ही नहीं है. मैम एग्जांपल रोम रैम. Yes. Okay. RAM and ROM. RAM and ROM is a primary memory, students. This is a basic question. ये basic है. You should know. You must know. Primary memory. What is the primary memory? Your RAM and random read-only memory, random access memories are the primary memories. Without your primary memory, you cannot run anything in your system. Got it? Primary memory, my page is, my Zoom is working. I am taking the lectures. Now why? Because the memory is accessing this portion. Memory में, primary memory में क्या store होगा? The CPU जो currently execute कर रहा है, the CPU currently जो process execute कर रहा है, that will be stored in the primary memory. प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या कि एग्जीक्यूट, सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट करेगा वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? प्राइमरी मेमोरी में. नाउ इन माय रैम, अभी मेरे रैम, प्राइमरी मेमोरी रैम इज अ टेम्पररी है.
ठीक है, परमानेंट नहीं है, उसमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है। वाई टेम्परेरी डेटा? बिकॉज अभी मैं जूम एग्जीक्यूट कर रही हूँ, आई एम टेकिंग द लेक्चर ऑन दी जूम पे मैं ले रही हूँ, एक मेरा वर्ड फाइल ओपन है, ठीक है, तो लेक्चर जो मेरा जूम लेक्चर जो है वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो अभी वो कहाँ पे स्टोर है? मेमोरी में स्टोर है। ये जो वर्ड फाइल मैंने ओपन किया है वो कहाँ पे अभी स्टोर है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है। ओके, एवरीथिंग जो भी सीपीयू एग्जीक्यूट करता है वो कहाँ पे होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। व्हेन आई विल क्लोज, अगर मैं ये जो वर्ड फाइल क्लोज कर दूंगी, स्टॉप कर दूंगी, तो वो प्राइमरी मेमोरी में से रिमूव हो जाएगा। हाँ, बट वो सेकेंडरी डिवाइस पे मैंने जहाँ पे सी ड्राइव डी ड्राइव में स्टोर करके रखा है वहां पे वो फाइल होगा, बट मेमोरी में से वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। व्हेन आई विल क्लोज दिस फाइल, मैं ये वर्ड फाइल क्लोज करूंगी तो वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेमोरी में से निकल जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी में कौन सा डेटा होता है? जो सीपीयू करंटली एग्जीक्यूट कर रहा है, सीपीयू करंटली जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो कहाँ पे होता है? प्राइमरी मेमोरी में होता है। दिस इज अ बेसिक। And what is a read-only memory? Read-only memory is used to start your system. Your operating system will be loaded in the read-only memory में. When you will start the system, आप आपका system start करते हो, तो at that time आपका जो operating system hard disk में store है first partition में, वो operating system वो कहाँ पे load होता है? read-only memory में. When you will click on the start button, तब जाके आपका सिस्टम स्टार्ट होता है। विदाउट रोम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं, तो आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, एंड रैम एंड रोम बोथ आर द प्राइमरी मेमोरी। रैम इज अ परमानेंट टेम्पररी है, प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्पररी मेमोरी। ओके, नॉन वॉलेटाइल डेटा, उसमें वॉलेटाइल मतलब कि अगर मैं क्लोज कर दूंगी तो डेटा विल बी लॉस्ट, ठीक है, मेमोरी में से वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ये पूरा डिटेल्स वी हैड लर्न इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पढ़ा आप लोगों ने? सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज अ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी क्या है? जिसमें वी कैन स्टोर अवर डेटा परमानेंटली। सी हार्ड डिस्क, ओके, हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट डिवाइस, सेकेंडरी डिवाइस आपका। देन पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, ऑल आर द सेकेंडरी डिवाइस। ओके, ऑल आर द सेकेंडरी डिवाइस। ये क्या है? सेकेंडरी डिवाइस जिसमें वी कैन स्टोर अवर डेटा परमानेंटली। आप अपना डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, बट वेन एवर आपको आपका पेन ड्राइव का डेटा एग्जीक्यूट करना है, व्हेन यू विल ओपन द डेटा फ्रॉम योर पेन ड्राइव, जब सीपीयू उसका एग्जीक्यूट करेगा तो द डेटा विल बी ट्रांसफर फ्रॉम सेकेंडरी डिवाइस टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है that is stored in the primary memory, वो कहाँ पे स्टोर है? प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर होता है, बट वो डेटा को भी whenever you execute ना, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? सेकेंडरी में से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है जब आप उसको एग्जीक्यूट करे हो तभी। क्लियर? ओके, नाउ द वन मोर क्वेश्चन इज व्हाट इज कैच मेमोरी? व्हाट इज कैच मेमोरी? अभी याद आया किसी को? प्राइमरी सेकेंडरी पे से कैच किसी को याद आ रहा है? व्हाट इज अ कैच मेमोरी? यस, बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। यस, वेरी गुड। ओके, बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू। बफर मतलब क्या? वही सेम कि जो फ्रिक्वेंटली जो डेटा है, या तो फ्रिक्वेंटली डेटा जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है बाई द सीपीयू, वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? कैच मेमोरी में। वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? कैच मेमोरी में। फ्रिक्वेंटली मतलब जो डेटा बार बार एग्जीक्यूट, सीपीयू जो डेटा बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है वो कहाँ पे स्टोर होगा? कैच मेमोरी में। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल इन योर सिस्टम, ठीक है, आप आपके सिस्टम में वेबसाइट आपका कोई लॉगिन करके रखा है, तो यू आर यूजिंग दैट, आपका वेब जीमेल अकाउंट बार बार करते हो तो वो पासवर्ड है वो क्या हो जाता है? सेव हो जाता है बफर में, कैच में, ठीक है। जैसे आप टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली दैट विल कम, उसको क्या बोलते हैं? कैच मेमोरी। फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, फ्रिक्वेंटली यूज एप्लीकेशंस, ठीक है, दैट विल बी स्टोर्ड इन कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी में स्टोर होगा, तो जब यूजर उसको नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करेगा तो वो सर्वर के पास जाएगा, वो क्या करेगा? डायरेक्टली कैच में से उसको डिस्प्ले करेगा। तो व्हाट इज द बेनिफिट? क्या? टाइम सेविंग। क्या है? टाइम सेविंग। फास्ट, कैच मेमोरी इज अ फास्ट मेमोरी, यूजर को जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट डिस्प्ले होगा। दिस इज अ कैच मेमोरी। जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा जो है, एप्लीकेशन जो है, दैट विल बी स्टोर्ड इन द कैच मेमोरी। मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा, यू शुड नो ना ये सारी चीजें। कोई भी क्वेश्चन कभी पूछा तो आपको फटाक से आंसर देना चाहिए। कंसेप्ट इज नॉट क्लियर। ओके, तो पेज रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया। द फर्स्ट इवेंट ऑफ द पेज लाइफ साइकिल इज द पेज इवेंट, पेज रिक्वेस्ट। दिस इज व्हेन द पेज इज फर्स्ट रिक्वेस्टेड फ्रॉम द सर्वर। व्हेन यू विल क्लिक ऑन द साइन अप पेज पे क्लिक करे हो कोई वेबसाइट के, या कोई रजिस्ट्रेशन पेज पे क्लिक करे हो कोई एप्लीकेशन के वेबसाइट के, तो द पेज रिक्वेस्ट विल बी जनरेटेड। ओके, the page request will be generated. This is when the page is first requested from the server.
व्हेन द पेज इज रिक्वेस्टेड, सर्वर उसको चेक करेगा कि रिक्वेस्ट फर्स्ट टाइम है कि नहीं। इफ द फर्स्ट टाइम है तो सर्वर विल सेंड, उसको मतलब पास करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एंड सेंड टू द यूजर। इफ इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, अगर वो फर्स्ट टाइम नहीं है तो वो क्या करेगा, कैच में चेक करेगा, कैच में चेक करेगा, कैच मेमोरी में है तो वो कैच मेमोरी से डायरेक्टली क्या करेगा, क्लाइंट को सेंड कर देगा। तो सर्वर को उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, पास करने के लिए जरूरत नहीं है, कंपाइल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कैच मेमोरी में वो पेज ऑलरेडी रेडी है तो उसको कैच मेमोरी में से डिस्प्ले करेगा टू द यूजर को। दिस इज अ पेज, this is a first. Okay, the second is page start. The second stage is page start. During this time two object known as request and response objects are created. जैसे ऊपर ऑब्जेक्ट क्रिएशन था एप्लीकेशन के लिए, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स था, सेम वैसे पर्टिकुलर पेज के लिए टू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। द रिक्वेस्ट object is used to hold all the information which was sent when the page was requested. Okay, and response object क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट दिया था उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड करेगा टू द यूजर। तो पेज स्टार्ट, पेज रिक्वेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, मतलब पेज स्टार्ट होगा तो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। विदाउट रिक्वेस्ट एंड विदाउट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपका आउटपुट आएगा ही नहीं, बिकॉज पेज वेबसाइट सर्वर पे है, वेब एप्लीकेशन सर्वर पे है, तो आप रिक्वेस्ट करते तो वो सर्वर के पास ही जाएगा, सर्वर एग्जीक्यूट करेगा एंड सर्वर सेंड द output. Okay, the third is page initialization. Page initialization, the third step क्या है, page initialization. during this time all the controls, जो controls है on the web page is initialized. So if you have any label, text box or any other controls on the web form, they are all initialized, they will be ready. Okay, sign up page पे जैसे क्लिक करोगे, फर्स्ट इवेंट पेज जो है, फर्स्ट इवेंट क्या है, पेज रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट जनरेट होगा, देन पेज स्टार्ट, मतलब आपने रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगा। ओके, सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट जाएगा तो सर्वर विल इनिशियलाइज ऑल दी कंट्रोल्स ऑन दी पेज, जो पेज में अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे, साइन पेज पे जो आपने डिजाइनिंग किया है, कंट्रोल्स जो आपने लिया है, यू आर टेकिंग एनी कंट्रोल्स, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, कोई भी कंट्रोल्स, ठीक है, तो ऑल कंट्रोल्स आर रेडी, इनिशियलाइज हो जाएगा, रेडी हो जाएगा सारे कंट्रोल्स। ओके, देन पेज लोड, द नेक्स्ट इवेंट क्या है, पेज लोड। This is when the page is actually loaded with all the default values. So if the text box is supposed to have any default value, that value is loaded during the page load time. Okay, अगर आपने किसी text box को या तो कोई भी variables को या तो कोई controls को if you are giving any default value दिया है, pi is equal to पाई का वैल्यू कांस्टेंट है, तो डिफॉल्ट वैल्यू अगर किसी ने किसी को अपना असाइन किया तो वो लोड हो जाएगा, अगर नहीं किया तो ये इवेंट अगर नहीं होगा। इफ इन योर पेज कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं किया है तो नहीं होगा। इफ यू हैव असाइनिंग एनी डिफॉल्ट वैल्यूज, टेक्स्ट बॉक्स या तो कोई वेरिएबल है तो किसी को भी आपने दिया है तो द वैल्यू विल बी loaded during the page load time. The next is validation. Okay, sometimes there can be some validation set on the form. For example, there can be a validation we say that the list box should have a certain set of values. If the condition is false, there should be error in loading the page. Okay, अगर आपने कोई validation दिया है email ID के लिए या तो phone number या तो text box should not be empty, enter something या तो password minimum 6 to 7 ऐसा जो भी validation if you are giving, वैलिडेशन अगर दिया है तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, वैलिडेशन का जो वैल्यू वो सेट हो जाएगा। ओके, वैलिडेशन जो है वो सेट हो जाएगा। द नेक्स्ट इवेंट इज पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग। विच इवेंट? पोस्ट बैक इवेंट हैंडलिंग। दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड, सी दिस इवेंट इज ट्रिगर्ड इफ द सेम पेज इज बीइंग लोडेड अगेन। ओके, if same page is being loaded again, this event is triggered if the same page is being loaded again. This happens in response to earlier event. Okay, for example, अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा जब हम लोग पोस्ट बैक कंट्रोल्स का, पोस्ट बैक इज इवेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, पोस्ट बैक प्रॉपर्टी भी इवेंट भी है। जब हम लोग ये प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगी आपको तब समझ में आएगा। तो जस्ट अभी याद रखो, इफ वी आर असाइनिंग एनी पोस्ट बैक इवेंट और प्रॉपर्टी टू एनी कंट्रोल्स तो ये इवेंट हैंडल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज पोस्ट बैक इवेंट दैट वी विल लर्न। पेज रेंडरिंग, द नेक्स्ट इज पेज रेंडरिंग, पेज रेंडर होना। दिस हैपन जस्ट बिफोर ऑल दी रिस्पॉन्स इन्फॉर्मेशन सेंड टू द यूजर। यूजर को पूरा इन्फॉर्मेशन सेंड कर दिया, यूजर ने जो रिक्वेस्ट किया था अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वेस्ट सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स सेंड कर दिया, यूजर ने उसको यूज किया, तो ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉर्म इज सेव एंड द रिजल्ट इज सेंड टू द यूजर एज अ कंप्लीट वेब पेज। ओके, मतलब क्या, सर्वर में से पेज क्या हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा।
ये सर्वर का जो काम था कि क्लाइंट को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देना, उसने रिस्पॉन्स दे दिया, देन पेज सर्वर में से क्या हो जाएगा, वो रेंडर हो जाएगा. ओके, एंड द लास्ट इवेंट इज अनलोड. वंस द पेज आउटपुट इज सेंड टू द यूजर, देयर इज नो नीड टू कीप द ASP.NET वेब फॉर्म ऑब्जेक्ट्स इन मेमोरी. जब वो मेमोरी में से रिमूव होगा तो क्या हो जाएगा, अनलोड. द लास्ट इवेंट क्या होगा, अनलोड हो जाएगा. तो दिस इज अ होल प्रोसेस. ओके, दिस इज अ होल प्रोसेस. किसका प्रोसेस है, एग्जीक्यूटिंग योर पेज. आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो पर्टिकुलर पेज के लिए, हम तो कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन किया, साइन अप पेज पे क्लिक किया, आपको साइन अप पेज डिस्प्ले हो रहा है, सबमिट बटन पे क्लिक किया, आपका आंसर स्टोर हो गया, आपने क्लोज कर दिया. हम तो इतना ही करें, बट बैकग्राउंड में ये जो पूरे इवेंट्स है, ऑल दिस इवेंट्स आर हैपनिंग. जो सारा इवेंट्स क्या है, अकर होता है, हैपनिंग. ओके, ऑल दिस इवेंट्स आर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड. ये प्रोसेस होता है. हमको तो इतना ही दिखता है कि हमने बटन पे क्लिक किया, आवर डेटा इज सेव, हमको इतना ही समझ में आता है. बट जब बैकग्राउंड में ये पूरा इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स जनरेट होता है. ओके, ये सारे इवेंट्स जो है that will be generated when you are requesting for particular page. And if you are requesting application, जब आप application URL में टाइप करते हो application, ठीक है, at that time आपको जो application डिस्प्ले होता है, वो दोनों स्टेप्स के बीच में ये स्टेप्स जो है वो जनरेट होता है. दिस इज अ लाइफ साइकिल ऑफ ASP.NET. Okay, application and page life cycle. Application life cycle, page life cycle. तो how questions कैसे होगा in the MCQ में, what is the first event, what is the last event, after the page request कौन सा event होगा, after the start कौन सा event होगा, before the page load क्या होगा, after the page load which event will be happen. तो ये जो figure है, ये figure you should remember. I will ask the question, okay, from these figures. आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है. रिक्वेस्ट मतलब क्या, स्टार्ट में क्या होगा, इनिशियलाइज क्या होगा, समझ के यू शुड रिमेंबर. ओके, बट ये स्टेप्स आपको याद रखना है. आई विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्टेप्स, दोनों के लिए, एप्लीकेशन के लिए भी एंड पेज के लिए भी. सो प्लीज नोट डाउन इट. ओके, उसको नोट डाउन करो अपने नोटबुक में, एंड आई विल आस्क एनी टाइम इन द लेक्चर, ड्यूरिंग द लेक्चर. ओके, तो आपको आंसर देना है, तो उसको ड्रॉ करके रखो. आई विल पोस्ट दिस फाइल गूगल क्लासरूम में, मैं पोस्ट भी करूंगी, बट अभी के लिए उसको नोट डाउन करके रखो ये फिगर. ठीक है, स्टेप्स जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज रिक्वेस्ट, पेज स्टार्ट, इनिशियलाइजेशन, पेज लोड, वैलिडेशन, पोस्ट बैक, इवेंट हैंडलिंग, पेज रेंडरिंग एंड अनलोड. ओके, जो स्टेप्स जो है, ओके, ये जो स्टेप्स जो है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए. सीक्वेंस इज फिक्स, ये सीक्वेंस फिक्स है. ओके, इसको चेंज नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता है, बिकॉज दिस इज अ लाइफ साइकिल. पहले यही होगा, उसके बाद स्टार्ट पेज, उसके बाद इनिशियलाइज, उसके बाद पेज लोड. तो यू कैन नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ दिस फिगर. ओके, ये फिगर का सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते. जो फ्लो में दिखा है वही फ्लो में यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नो, यस और नो. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल आस्क दिस स्टेप्स. ओके, ओनली मैं स्टेप्स, हाँ मैं स्टेप्स आपको पूछूंगी. ओके, कि ASP.NET वेब पेज जो है, पेज लाइफ साइकिल के कौन से स्टेप्स है, and applications के कौन से steps. So you have to just give the steps name: application start, object creation, and create HTTP application creation, dispose and application end. Okay, just steps मुझे आपको मुझे बताना है. Okay, in the next lecture I will ask, सबको पूछूंगी मैं, फटाक से मुझे आंसर चाहिए. ऐसे 2 टाइम 3 टाइम्स ऐसे नहीं कि मैम बोलेंगे नेम कॉल आउट करेंगे देन यू विल गिव द आंसर. ऐसे नहीं, जिसका नेम दिया आपको जल्दी से आंसर देना है. ठीक है, कुछ नहीं, इजी है, उसको नोट डाउन करके रखो. आई विल आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके ओके,